Very good afternoon, everyone. This is Krishan Roy, and I am your host today. And today we are going to talk about the current situation in Ukraine. And this is one of the first incident after Afghanistan, and this is really concerning, just not for us, but this is concerning for everyone around the globe. Today's session is meant to give you the real insights of Ukraine instead of any kind of molded, opinionated, or sensational form of information about the Russia and Ukraine wars like situation. So stay tuned with briefly for further updates, and we'll have soon few people joining us from Ukraine to give us the exact and the right insights about the locality in Ukraine. Interacting with few of the Indian students who are residing in Ukraine and who's doing their medical studies. So we will try to understand the exact scenario that's prevailing in Ukraine, and also witness what kind of difficulties these people are facing in terms of stay and accommodation in a place which is surrounded by the army and can be attacked at any moment. So, and however, our government is doing the best to cope up with these kind of situation, and they have already organized several flights for several flights which will land it to Ukraine and take back the Indian students back to India from Ukraine. So we will soon be having Raghiv Rahman, a medical student who's been staying in Ukraine for last 5 years. He'll be joining us soon, and we'll be taking the further updates from him in a while. There have been a lot of stories behind the Ukraine story, Ukraine and Russia war stories, and I'm sure you would have definitely gone through a lot of stories which is forecasted by our traditional media. Hi Raghav. हेलो Yes, hello. मेरी Hello. आवाज आ रही है Yes, अभी आ रही है, अभी आ रही है. So welcome to the Briefly News platform, Raghav. Thank you so much for joining in with us today. Yes. So Raghav, we understand the current situation which is going in Ukraine. The war between Russia and Ukraine. So we have certain questions. Our audience wants to know that what is the real insights that is happening around the city. Should we start with our questions? यस योर Yes. Thank you, Raman. So our first question is, could you tell us, what is the current situation around the city? The situation around the city is normal. Everyone is roaming around the city and having nice weekends, and everything is good. City is in peace. Okay, so there is no problem as of like लोग डरे हुए नहीं हैं, लोग परेशान नहीं हैं, इस नहीं, तरीके बिल्कुल भी नहीं से नहीं हुए, सब नॉर्मल एक्ट हो रहा है. All जी, right. सब कुछ नॉर्मल है. All right. So our second question is, what about the colleges and the market? Is it open, or how's the situation there? Everything is open. Shopping market and colleges are I think our college is online because of corona, not of Okay. war. All right. So war की वजह से किसी भी तरीके की कोई issues नहीं हो रही हैं. ना. But there are a lot of stories in the market जो बता रही हैं कि लोगों को वहां से खाली करना पड़ रहा है घर, लोग अपने वहां से यूक्रेन से सभी बाहर जाना चाह रहे हैं, खास करके इंडियंस की सिक्योरिटी के लिए भी काफी लोगों को वापस ले आया जा रहा है. जो इंडियन एम्बेसी है उन्होंने मतलब अलग अलग एडवाइजरी जारी की है कि उन्होंने 15 तारीख को बोला था कि आप जो भी नॉन एसेंशियल यूक्रेन में रह रहे हो उन्हें आप मतलब यूक्रेन छोड़ दो. फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने फ्लाइट अरेंजमेंट भी किया, और फिर अभी फिलहाल 22 को उन्होंने बोला है कि जो भी लोग हैं वो लोग इंडियन स्टूडेंट वो लोग ऑनलाइन का वेट ना करें, वो लोग यूक्रेन छोड़ दें. क्योंकि अभी हाल ही में डॉनबास वाला जो इलाका जहाँ लुहांस्क और डोनेस्क वाला जो रीजन है, वो जो आधा रीजन जो रसिया ऑक्यूपाइड था उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया है. Okay. So we have Atik here. Hi हेलो सर. हेलो Atik. जी. आवाज जी बताइए. यस आतिक. सो कैसा चल रहा है आतिक वहां पे? जी अभी सिचुएशन तो नॉर्मल है, और बॉर्डर साइड पे ज्यादा तनाव है, जैसे डॉनबास रीजन में अगर देखा जाए, और मोल्दोवा वगैरह में भी काफी ट्रूप्स लगे हुए हैं जो कि यहाँ से 300 किलोमीटर दूरी पर है. लेकिन ये है कि अभी मैंने जैसे कि जो भी हमारे दोस्त वगैरह हैं रशियन या यूक्रेनियन जो भी दोस्त हैं उनसे हम फीडबैक लेते रहते हैं यहाँ का,
तो उसमें से मोस्ट ऑफ द पीपल यही बोलते हैं कि चांसेस जो हैं वो वार के 50-50% है। और बाकी जो अंदर की सिटीज हैं या स्टेट्स हैं, उन बॉर्डर लाइन को हटा के, तो वो अभी सेफ है, वो अभी नॉर्मल है, वहां पर कोई कॉन्फ्लिक्ट वाला जैसा माहौल नहीं बना हुआ है। सो मुझे ये जानना था कि ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो वहाँ की मीडिया है उनसे रिलीज हो रही है, या फिर ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है? सोशल मीडिया से, या फिर वहाँ के लोकल जो मीडिया है वो लोग रिलीज कर रहे हैं? नहीं नहीं, सोशल मीडिया से भी आ रही है, और इंस्टाग्राम पे हम लोग बहुत से पेज भी फॉलो कर रखे हैं, जैसे ओडेसा इन्फो या फिर यूक्रेनियन मीडिया जो है। तो हम्म, हालांकि ये जो न्यूज है वो तो लिखी रहती है रशियन में या फिर यूक्रेनियन लैंग्वेज में, तो हम लोग उसको ट्रांसलेट करके समझ लेते हैं। और मोस्ट ऑफ द नॉलेज हम लोग ट्विटर से भी गेन कर लेते हैं, और इंडियन मीडिया से तो मिल ही जाती है काफी नॉलेज। ओके। यहाँ काफी सारी स्टोरीज भी आई हैं कि वहाँ पे सिचुएशन बहुत खराब चल रहा है, लोगों को पैनिक कर रहे हैं बहुत सारे लोग। सो ये बात कहाँ तक सच है? ये बात तो देखिए, अगर मैं पीछे की ओर जाता हूं, तो अगर हम बात करें, बहुत से एग्रीमेंट भी हुए थे पहले टाइम पे भी, जैसे मिंस्क एग्रीमेंट हुआ था। तो उस दौरान ये हुआ था कि 2014-15 के अराउंड ये हुआ था कि व्लादिमीर पुतिन ने इसको डोनबास रीजन को सेल्फ डिक्लेरेशन घोषित कर दिया था, रिपब्लिकन्स घोषित कर दिया था। उसके बाद भी उस दौरान अगर देखा जाए तो 2014-15 के दौरान रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स्ट किया, और प्रो रशियन को डोनबास रीजन में एक्टिव कर दिया ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट फैला सके। तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर बात करें, और दूसरी बात यह है कि अगर हम ओएससी के अकॉर्डिंग बात करें, जो जो यूरोपियन सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसके अकॉर्डिंग बात करें, तो वहां भी रिपोर्ट यही आ रही है कि वायलेशन काफी बढ़ चुका है इस दौरान, लगभग 2022 के दौरान, 2021 से 22 के दौरान, इसके बीच का जो भी ड्यूरेशन है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो काफी वायलेशन बढ़ चुका है। दूसरी बात कि अब ये वायलेशन बढ़ने की वजह से तो कहीं ना कहीं चांसेस इस बार लग रहे हैं कि वॉर जैसी सिचुएशन बन सकती है। राइट। ओके, ऑलराइट, थैंक यू आकिब। सो हमारे साथ राज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राज सनी फ्रॉम यूक्रेन। हम लोग उनको ज्वाइन इन करते हैं। राज, क्या अब तक मेरी आवाज आ पा रही है? इंटरनेट इश्यूज आ रहे हैं। ऑलराइट, आई थिंक उनके साथ कुछ नेटवर्क इशू चल रहा है। सो लेट्स लेट्स विल बी प्रोसीडिंग फॉरवर्ड। सो हमारे पास और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी हम आप लोगों से जानना चाहेंगे, so let's proceed to our next question. How have you guys been surviving in such situation, जो situation वहाँ पे चल रहा है वॉर का, and what about the food amenities? जैसा कि इवन रहमान ने भी बताया हमें कि वहाँ पे मार्केट्स खुली हुई हैं, तो जी जी बिल्कुल। सिचुएशन कि आप बाहर मार्केट जा करके सामान लेके आ रहे हो घर पे एंड स्टे बैक कर रहे हो, इट्स अ वेरी नॉर्मल सिचुएशन, और या फिर कुछ डिफिकल्टीज भी आ रही? No, there is no any difficulties till now, everything is normal, but maybe situation will be worst according to the time, if it is proceed further time, like after 5 days, 6 days, maybe situation will be worse. ओके, ऑलराइट। सो हमारे साथ मिस्टर फिरोज खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो मैं उनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। राइट, मिस्टर फिरोज। Hello, हेलो, हाय मिस्टर फिरोज, हाउ आर यू डूइंग? fine man. And you? आई एम ग्रेट, ग्रेट, थैंक यू फॉर। यस मिस्टर फिरोज, सो हम लोग बेसिकली कुछ इंडियंस के हमारे दिमाग में कुछ सवाल थे जो हम जानना चाह रहे थे, क्योंकि आप लोग यूक्रेन में हो। बेसिकली आप सब हमें लाइव इनसाइट्स बता सकते हो कि एग्जैक्टली वहाँ चल क्या रहा है। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस के साथ आगे। सो हमारा क्वेश्चन है, आर देयर एनी अरेंजमेंट्स मेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट to help our Indian community staying in Ukraine, for all our students, probably the people who are staying in Ukraine who belongs to India? What kind of arrangements have been made by Indian government? Start करते हैं। Actually, yes, yes, Atik, proceed. Please, जी जी, अगर इन कंडीशन में मैं बात करूं, तो बेसिकली ये देखा जा रहा है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग हर इंडियन सिटीजन को प्रोटेक्शन देने की बात की जाती है, वेदर वो कहाँ भी रहे, कहीं भी रहे, चाहे इंडिया में रहे चाहे कहीं भी रहे। इसी वजह से इंडियन एम्बेसी भी बनाई जाती है। लेकिन ऐसे हालात पर अगर कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट हमसे एक प्रॉफिटेबल सौदा कर ले तो ये गलत बात है। प्रॉफिटेबल सौदा मीन्स कि अगर ऐसी सिचुएशन की जहां वॉर जैसी सिचुएशन हो, इसके दौरान भी, और कई ऐसे भी बहुत से बंदे हैं यहाँ पे जो फाइनेंशियली वीक हैं, उस दौरान 62,000 की टिकट ये कहीं ना कहीं एक प्रॉफिटेबल सौदा मानते हैं हम, और इसको इवैक्यूएशन के नाम पर हम इंडिया में वाहवाही लूटे तो ये गलत बात है।
हमारी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें, क्योंकि वहां पर तो मीडिया में दिखा दिया जा रहा है, टीवी 9 भारत में और न्यूज 18 में, इन सब में दिखाया जा रहा है कि हम इवाकुएशन हो रहा है। नहीं, कोई इवाकुएशन नहीं हो रहा है। लोग प्रिफर कर ही नहीं रहे हैं एयर इंडिया की फ्लाइट को। हाँ, जिनके पास पैसा है वो कर रहे हैं, लेकिन उन बंदों को कौन कंसीडर करेगा जो फाइनेंशियली वीक है? सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है। तो ऐसे बंदे या तो ना जाएं, और अगर जाना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब होगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक माइंडसेट बना के आते हैं। इंडिया इंडिया से ही जब यहाँ एमबीबीएस करने आए थे तो ही एक माइंडसेट बना के आते हैं कि हमारा साल का खर्चा इतना होगा, हमारी फीस इतनी होगी। अब उसके दौरान अगर बीच में किसी किस्म की कॉन्फ्लिक्ट होती है और मामला बिगड़ता है, तो उस दौरान हमारी इंडियन गवर्नमेंट को मदद करनी चाहिए, फॉरेन मिनिस्ट्री को, या अभी जो भी सिंधिया है एविएशन मिनिस्टर, तो उनको ये चीज देखनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या कहते हैं कि फ्री में हमको इवाकुएट कराएं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इंसेंटिव कुछ देनी चाहिए कि कुछ गवर्नमेंट मदद कर दे, कुछ इंडियन स्टूडेंट मदद कर दे, और जो फ्लाइट के फेयर्स हैं वो 32 to 35,000 के अराउंड हो जाए। तो इससे क्या होगा कि जो हर बंदे हैं वो सेफली जा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि क्या कहते हैं कि फ्लाइट के फेयर्स तो अगर देखे जाएं तो जो अदर्स एयरलाइंस है, जैसे एयर अरेबिया है, कतर है, तो मोस्ट ऑफ द बंदे उससे जाना प्रीफर कर रहे हैं। तो ऐसी फ्लाइट्स को चलाने से इंडिया से क्या फायदा है जिससे बंदे प्रीफर नहीं कर रहे हैं और सहमति भी नहीं है? तो ये बात गलत है। तो हमारी सहमति के अकॉर्डिंग अगर काम हो, यहाँ के जो भी स्टूडेंट हैं, तो हम मानेंगे कि ये हमारी इंडियन ने मदद किया है, अदरवाइज मैं नहीं मान सकता। बिल्कुल बिल्कुल। सो आकिब, आप कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट आपसे एक टिकट के अराउंड 60,000 चार्ज कर रही है, राइट, पर हेड? जी जी बिल्कुल जी। और नॉर्मली जो कि अमूमन मुनासिब दाम जो इसका अमूमन है, वो लगभग मुनासिब फेयर अगर कि हम उसकी बात करें तो लगभग 30,000 25,000 के अराउंड रहना चाहिए, जो कि अब बढ़ चुकी है। तो नॉर्मली जब आप यूक्रेन से वापस इंडिया ट्रैवल करते हो तो उसके टिकट 30 to 35,000 होती है नॉर्मली। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से चार्ज जो किया जा रहा है वो 60,000 है। 62,000 किया जा रहा है। ओके, आई थिंक ये एक रियल इंसाइट्स है जो हमें आप लोगों के थ्रू मिला है, क्योंकि जी देखा इवैक्यूएशन की फ्लाइट्स निकली हैं, एक 22 को भी निकली हैं, और फ्लाइट्स हैं जो जाने वाली हैं, बट हमें इस चीज का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि 60,000 भी चार्ज किया जा रहा है। तो जी जी। डेफिनेटली इट्स अ बिग इंसाइट। यस, इट्स टू मच। यस यस। सो आप लोगों ने भी अपनी टिकट ले लिए हैं वापस इंडिया आने की, या क्या प्रोसेस में है आगे? नहीं नहीं, टिकट तो हम लोगों ने करा ली है उसकी, कतर एयरवेज की हम लोगों ने कराई है, जो कि हमको पड़ी है 26,000 की। और 26? मैं, जी जी, 26,000 की। और इसी वजह से मैंने इतनी जो मदद मिली उसको मैंने ठुकरा दिया अभी इस टाइम तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, और भी बहुत लोगों ने ठुकरा दिया है। आपने और हम वहां पे लैंड, लगभग हम 11 तारीख को वहां पे लैंड कर जाएंगे, 11 मार्च को। 11 मार्च को, ऑलराइट। जी सो जी राघव, आप जी लोगों ने टिकट ले ली है इंडिया? जी। मैंने कतर एयरवेज से। आपने भी? एंड फिरोज, आपने टिकट ले लिया या है? या मैंने भी ले लिए। 9 मार्च को मैं भी पहुंच जाऊंगा। अच्छा, सेम तो प्राइस। कतर वेज से आ रहे हैं या फिर इंडियन इंडिया जो प्रोवाइड करा रही है एयर इंडिया, उससे आ रहे हैं, या फिर आप किसी और फ्लाइट से? नहीं, कतर एयरवेज। कतर। सेम प्राइस। ओके, ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। सो हमारे पास जस्ट कुछ और क्वेश्चंस हैं, जो हम प्रोसीड करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द सिचुएशंस ऑफ फ्लाइट, वहां पे जो फ्लाइट्स टेक ऑफ कर रही हैं या फिर आ रही हैं, तो व्हाट आर वहां पे क्या तरीके से पहले नॉर्मल फ्लाइट्स आना जाना करते थे या फिर ट्रैवल करते थे, उसी तरीके से हो रही है, या फिर उसमें भी कुछ चेंजेस आए हैं या कुछ नए प्रोटोकॉल्स आए हैं? फ्लाइट्स वगैरह बीच में हेलो। कैंसिल हो रही थी, लेकिन अभी फिलहाल सब नॉर्मल चल रहा है। अच्छा, क्योंकि हाँ, ओके। सो अभी फ्लाइट्स के आने और जाने में कोई प्रॉब्लम वहां पे नहीं आ रही, ट्रैवलिंग? नहीं नहीं नहीं। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। और जो बहुत सारे जो फ्लाइट्स को इंक्रीज भी किया गया है और सीट लिमिट भी कम कर दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, ग्रेट ग्रेट। So I guess we have got a better insights about Ukraine, and I really want to thank students who helped us to understand the right insights, right situation in Ukraine, what is around. So before we finish it off, we would like to ask all of you, do you guys have any requests
that you want to make to the Indian on behalf of your Indian friends who are staying in Ukraine or who are stranded in Ukraine? बस यही कि टिकट का Yeah. प्राइस कम कर दिया जाए जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में एयर इंडिया इंडियन $800 तो 60,000 वो अमाउंट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है नॉर्मल प्राइस से। राउंड जी ट्रिप जी लगाए ना बिल्कुल तो भी 20,000 बच जाएंगे। जी, इतनी ज्यादा मदद हम सब नहीं झेल सकते हैं एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल हम पा रहे हैं। We will try our best to send this video to make it reach out to all the Indian officials, ताकि वो लोग भी इन बातों पे गौर कर सकें और इस पर कुछ इस समस्या का कुछ हल निकाल सकें। So thank you Rahman, thank you जी जी, Adil for your मोस्ट time वेलकम। and everyone for being a part of the session. Hope you guys be coming with more updates in future. So until then, stay with Briefly News, and I'm your host Krishan Roy. Thank you for joining for today's session.